वॉइस ऑफ मार्जिन में आपका स्वागत है। हमारे देश की कानून व्यवस्था पर आए दिन कोई ना कोई आरोप लगते रहते हैं, क्योंकि कानून व्यवस्था को चलाने वाले अधिकारियों द्वारा ही कानून का उल्लंघन किया जाता है। हाल ही में तमिलनाडु के तूतीकुरम में पुलिस निर्दयता का एक नया मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस द्वारा एक पिता पुत्र के साथ हिरासत में अत्यधिक क्रूर व्यवहार किया गया। उन्हें शारीरिक तौर पे इतना प्रताड़ित किया गया कि अंत में उन दोनों की मौत हो गई। ये ऐसा पहला मामला नहीं है, ऐसा पहले कई बार हुआ है कि कुछ व्यक्तियों को जांच के आधार पर विभिन्न पुलिस थानों में ले जाया गया है और फिर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। और ऐसे मामलों में पुलिस विभाग हमेशा सफल रहे हैं, पुलिस अधिकारी हमेशा असफल रहे हैं और पुलिस विभाग अपने अधिकारियों के खिलाफ उन मामलों के ठीक से संभालने में विफल रहता है, जो अनसुलझी है और असफल है। जयराज और फिनिक्स को किन बुनियादों पर पुलिस ने हिरासत में लिया? उन पर क्या आरोप थे? First, if you see the FIR dated, first information report dated 19/6/2020, which was registered against these two deceased persons, are simple in nature. Section 269, 188, 294B, 353, and 506/2 of Indian Penal Code. These sections are not grave in nature. See, the allegation is that they did not close the shop and they did not obey the government servant order. तमिलनाडु के तूतीकुरम जिले में सतनकुलम गांव के पिता पुत्र की कथित तौर पर पुलिस हिरासत में मौत के मामले को लेकर कई बड़ी हस्तियों समेत हजारों लोगों ने सोशल मीडिया पर न्याय की मांग की। तूतीकुरम जिले में पुलिस ने 19 जून को लॉकडाउन का उल्लंघन करने को लेकर पिता पुत्र को हिरासत में लिया था। उनका जुर्म सिर्फ इतना सा था कि उन्होंने अपनी दुकान को तय समय सीमा से थोड़ा देर तक खुला रखा था। क्या न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी को रिमांड में भेजने से पहले कानून के अनुशासन का पालन किया था? The judicial magistrate who remanded these deceased persons should have applied his mind before his remand. The Honorable Supreme Court in the case of Arnesh Kumar versus State of Bihar clearly issued directions that the magistrate should not remand the accused persons wherever the offences are below 7 years imprisonment cases. The magistrate should apply his mind and he must satisfy himself for the remand, and the special reasons must be noted. So the judicial magistrate who remanded these two persons, and further these two persons are not criminals, they are traders, and the magistrate need not send them for judicial custody in the light of Arnesh Kumar judgment. The magistrate should have read the FIR, because the first information report itself said that the deceased persons themselves got injury when the police were interrogating them. This is a concocted story, prima facie revealed through the police first information report. It is very much noted that the first information complaint was given by a policeman, the head constable Murugan, and the same was registered by the sub inspector of police. So all these incidents, prima facie through the FIR itself, it disclosed that the deceased person sustained injuries before before producing before the magistrate. The magistrate, without it reveals that if the magistrate read properly the FIR, he would have sent the persons to the to the hospital for better treatment. At least if they send the medical treatment, if they send for medical treatment, they would have alive today. But I strongly make my allegations against the judicial magistrate who remanded this deceased person. He must be sent for departmental action.
थूथुकुडी या तूतीकुरम में 60 वर्षीय जयराज और उनके 30 वर्षीय पुत्र फिनिक्स या बेनिक्स, जिनको बेनिक्स भी कहते हैं और प्रोनाउंस किया जाता है, उन दोनों ने अपनी दुकान तय समय सीमा से थोड़ी देर तक खोली रखी थी। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लॉकडाउन के समय बाज़ार में दुकानों के खुलने तथा बंद होने का एक समय निश्चित किया गया है। इसी के साथ कुछ अन्य नियम भी बनाए गए हैं, लेकिन उस दिन इन दोनों की दुकान तय समय से कुछ देर तक खुली रह गई थी। आसपास के लोगों का कहना है कि ये तब बढ़ गया जब पुलिस ने जयराज को पकड़ लिया। उसके बाद बेनिक्स वहाँ पर गए, उन्होंने बेनिक्स को हस्तक्षेप करने के लिए प्रेरित किया। इसके बाद दोनों को सथानकुलन पुलिस स्टेशन ले जाया गया और 2 पुलिस अधिकारियों द्वारा कथित रूप से क्रूरतापूर्वक हमला किया गया। कई चश्मदीद गवाहों और सूचनाओं के जानकारों ने यह भी बताया है कि उनके साथ क्रूर व्यवहार किया गया, उनका यौन शोषण किया गया और उसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। बाद में ये बताया गया कि बेनिक्स की अस्पताल में ही मौत हो गई और कुछ ही घंटे बाद उनके पिता की भी मृत्यु हो गई। अब तक तमिलनाडु सरकार ने मामले को सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया है, लेकिन यह भी जरूरी है कि विक्टिम के परिवार का ध्यान रखा जाए। After seeing the culpability in this case, the Chief Minister of Tamil Nadu has announced 10 lakhs rupees compensation to each deceased family. Subsequently, the government's employment to the deceased family. The police officials registered subsequently 2 cases, that is crime number 3649 and 650, with regard to their deaths. The intimation was given by the jailer, and based on that intimation, for the 2 cases were registered. Now, the deceased mother as well as the deceased wife, she came forward and she lodged the complaint against the police officials and their involvement. So it is necessary the investigation officer, before commencing their investigation, must register a case under section 302 of IPC to commence his investigation in this case. Because the allegations raised against the police officials, after the continuous demand and the people's protest, first they initially the police officers were transferred and subsequently they were placed under suspensions. Now this case presently is dealt with by the DSP as per the directions given by the our Madurai bench of Madras High Court. The question is, if a person commits a crime in the police department, the case should be impartially investigated. The case should be transferred to some other agencies like Central Bureau of Investigation or in the CBCID headed with some IPS officers, and that should be closely monitored by the High Court. So the investigation beginning at the beginning itself should be transferred to an independent agency, and that should be also monitored by the High Court periodically. Then only the justice will be done to the deceased family. पी जयराज और उनका बेटा बेनिक्स मोबाइल की दुकान चलाते थे। बाप बेटे की 23 जून को केवलपिट्टी स्थित अस्पताल में मृत्यु हो गई। जयराज की पत्नी का आरोप है कि पुलिस स्टेशन में बर्बरता से पीटने के कारण उनके पति और बेटे की मौत हुई। इस मामले में अब आम लोगों के साथ ही कई बड़े सितारे भी सोशल मीडिया पर न्याय की मांग कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर जयराज एंड फिनिक्स और जस्टिस फॉर जयराज एंड फिनिक्स लगातार ट्रेंड कर रहा है। मामले को तुल पकड़ता देखकर तमिलनाडु की सरकार ने मृतक के परिवार को 10 लाख रुपए और सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। Now the official records should be also should be shared to the victim's family, because I'm not saying the all the investigation report must be shared with the deceased family. The
the prima facie reports, like whether the arrest intimation was given to the deceased family as per the DK Basu judgment, and the medical, in fact, some doctors said after this incident, as per the Tamil Nadu Medical Code, Article 621, after completion of the post-mortem, the preliminary report should be given to the family, as well as that has to be kept in a sealed cover and sent to concerned magistrate and the investigation officer. So everything is happening in their custody and in secret manner. The victim cannot access the reports and cannot speak her case before any forum. So the investigation should be transferred to impartial investigation officers, to other agency, as well as at least the preliminary report should be given to the victim's family for taking the case in a better way before the legal forum. मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि पुलिस कस्टडी में दोनों के साथ बहुत ही बुरी तरह व्यवहार किया गया, उन दोनों को बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर किया गया था, जिससे उन दोनों की मौत हो गई। इस पूरी घटना की डिटेल्स बहुत ही ज़्यादा भयानक है। ये जानने के बाद पूरे देश में लोग सोशल मीडिया पर इस घटना पर अपना गुस्सा जता रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू ने भी सोशल मीडिया पर इस घटना पर गुस्सा और नाराज़गी जाहिर करते हुए ये कहा है कि ये हमारी जान पहचान के लोगों में से किसी के साथ भी हो सकता था। डिटेल्स जो है बहुत ही डरावनी है और बेइंतहा भयानक है। तूतीकुरिन में जयराज और उनके बेटे बेनिक्स की मौत ने तमिलनाडु में बड़े पैमाने पर उत्पात मचाया हुआ है। बहुत ज़्यादा तमिलनाडु में लोगों के बीच आक्रोश मचा हुआ है। कहा जाता है कि पुलिस क्रूरता की जांच की मांग करने के लिए सोशल मीडिया पर कहा जाता है कि ये जो पूरा मामला है पुलिस क्रूरता का है, और इसकी जांच की मांग करने के लिए सोशल मीडिया पर ले जाने वाले लोगों की मौत में मजिस्ट्रेट की भूमिका पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सतानकुलन पुलिस ने जयराज और बेनिक्स के रिमांड के लिए मजिस्ट्रेट बी सर्वनन से संपर्क किया था। द न्यूज़ मिनट ने बताया है कि मजिस्ट्रेट ने कथित तौर पर पिता पुत्र की जोड़ी को देखे बिना रिमांड का आदेश दे दिया था, जिसमें यह पता लगाना ज़रूरी था कि क्या वे लोग पिता और पुत्र घायल हैं या वो किस स्थिति में हैं। उन्होंने एक बार भी ये देखने का प्रयास नहीं किया कि वो दोनों किस हाल में हैं। उन्होंने ये देखे और जाने बिना उन्हें रिमांड में भेज दिया। उन्होंने ज़रा सा भी जानने की कोशिश नहीं की उनके साथ कैसा व्यवहार किया गया है। बताया गया है कि 20 जून को पहले बेनिक्स और जयराज को अस्पताल में ले जाया गया, जब उन्हें रिमांड के लिए मजिस्ट्रेट के सामने लाया गया था। वहाँ बेनिक्स और उनके पिता कथित तौर पर पुलिस से बार बार मिल रही धमकियों के कारण अपने अध्यादेश की सच्चाई नहीं बता सक रहे थे। उन्हें डर लग रहा था क्योंकि उन्हें बार बार पुलिस से धमकियाँ मिल रही थी। वो अपने ऊपर हो रहे व्यवहार, अपने ऊपर हो रहे क्रूरता की सच्चाई नहीं बता पा रहे थे। वो दबे मुंह रह गए, उन्होंने कुछ अपने बारे में नहीं बताया। उसके बाद 22 जून को बेनिक्स बीमार पड़ गए और उन्होंने केवलपट्टी जनरल अस्पताल अस्पताल ले जाया गया और जहां उनकी मृत्यु हो गई। एक दिन बाद उनके पिता की भी मृत्यु हो जाती है। आरोप है कि हिरासत में ही जो है पुलिस ने उनकी इतनी पिटाई की, इतना प्रताड़ित किया कि इस वजह से उन दोनों की मौत हुई है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी पता चलता है कि पुलिस हिरासत में दोनों का यौन उत्पीड़न भी हुआ है। साथ ही ये भी बताया गया है कि उन्हें इतनी बुरी तरह से पीटा गया था कि उनकी पूरी कमर काली पड़ गई थी और पूरे शरीर पर मार पड़ने की वजह से जख्म के दाग। चेन्नई स्थित समाचार साइट द फेडरल ने चश्मदीदों जो कि बेनिक्स के दोस्त थे और जो उनके साथ पुलिस स्टेशन गए थे, उनके अनुसार जयराज और उनके बेटे को उनके कहने के हिसाब से पुलिस जो है हिरासत में ले गए थे। उन्हें पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था। 20 जून को सुबह 7 से 12 बजे के बीच पिता और पुत्र ने कम से कम 7 बार लुंगी को बदला था। उनके लुंगी को बदला गया था।
क्योंकि वे उनके खून के बहने के कारण गीले हो गए थे। ये सारी बात फेनिक्स के दोस्त के हवाले से द फेडरल न्यूज़ साइट ने बताई है। दोस्त ने यह भी कहा है कि पिता पुत्र की जोड़ी फटे और खून से लथपथ कपड़ों में जेल से बाहर आई थी। फेनिक्स के दोस्त जो पुलिस स्टेशन में भी मौजूद थे, जब पुलिस ने उन्हें वहां से ज़बरदस्ती भगा दिया था, उन्होंने समाचार आउटलेट को बताया है कि 3 घंटे के लिए उन्होंने जयराज और फेनिक्स के केवल चीखे और रोने की आवाज़ सुनी। एक बार जब उन्होंने उनकी चीखों की आवाज़ सुननी बंद कर दी तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना वो उन्हें झांक करके देखे कि अंदर क्या हो रहा है। उन्होंने झांकने की कोशिश की तो उन्हें देखा गया कि उन्हें निर्वस्त्र करके उन्हें मारा जा रहा है। इसके बाद जयराज और फेनिक्स के परिवार ने दोनों पुलिस वालों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि वे दोनों की मौत के लिए जिम्मेदार थे। परिजनों ने कहा है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक वे शव को स्वीकार नहीं करेंगे। यहाँ तक कि पोस्टमार्टम तिरुनेलवेली के सरकारी अस्पताल में किया गया। द्रमुक सहित विभिन्न राजनीतिक दलों ने भी दोनों की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जयराज और फेनिक्स केस में मुख्य आरोपी कौन हैं और उन पे क्या-क्या कार्रवाई हो सकती है? There are 3 organs involved. One is police department, second is judiciary, third is prison department. The deceased were arrested by the police officials. The deceased were produced before the judicial magistrate. The deceased were sent to judicial custody to the sub-jail Kovilpatti. If any one of the institutions reports are correct, definitely justice will be done to the deceased family. If you take for example, prison entry, usually the central prison, many cases I have witnessed, I have seen the records that whenever a person sent to judicial custody, before they sending to the prison inside, the prison officials note all the injuries, whatever occurred, whatever on their body. This is examination done exclusively by the prison department. If we get the proper reports from the sub-jail, the injured must come out. The injured must come out, whatever sustained by the both deceased persons. See, the son and father, 2 deaths takes place in this case. The father is aged about 59 years old and the son is aged about 31 years old. The young man who has completed his master degree in social work, who intended to do social work in the society, but he unfortunately died in the police and prison custody. If we get proper reports, the accurate reports from these institutions, namely police stations, for example, we can get it because the police arrested the deceased persons on 19/6/2020. The whole night, the whole records reveal that the next day, afternoon 20th June to afternoon 2:30 only, they were remanded to judicial custody. It clearly revealed that the whole night and the next day also, half day, he is in both the deceased were in the police custody. There is no necessity to keep them in the police custody, to my view, because it is not a serious nature of offense to investigate this case. Your case itself revealed that the policeman is the complainant, the other persons might be the witness to this case. Your case is that he violated the COVID-19 rules and also he did not obey your promulgations. That's your case. But the extreme steps you took them for remand, and the judicial magistrate also did not consider the gravity of the offense in this case involved, and subsequently they were remanded and they were taken to judicial custody. But also, that's why I'm saying that if we check the prison department, at what time
the both deceased were shifted from the hospital. Which vehicle were used to for them to ship from transporting them from prison to hospital, and further also the whether duty doctor was present in the sub jail, the Kovilpatti. These issues or these answers are in the records only. If we get all these records, definitely we will come to a conclusion, and we will get much more evidence against the delinquent officials who are involved in this heinous crime. जहां लोग ट्विटर पर हैशटैग जस्टिस फॉर जयराज एंड जस्टिस फॉर फेनिक्स एंड जस्टिस फॉर जयराज एंड जस्टिस फॉर बेनेट इस्तेमाल कर रहे हैं और मामले में पुलिस की बर्बरता का आरोप लगा रहे हैं, वहीं कई हस्तियों ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर भी न्याय की मांग की है। क्या हम कानून को अपने पाठ्यक्रम में ले सकते हैं और दोषियों को जयराज और फिनिक्स मामले में किसी और देरी के बिना दंडित कर सकते हैं? अपराधी दूर नहीं हो सकते। एक परिवार ने अपने सभी प्रियजनों और प्रिय लोगों को खो दिया है। न्याय में देरी न्याय से वंचित है। हालांकि यह मामला यूएसए के जॉर्ज फ्लॉयड मामले की तरह पूरे विश्व भर में याद नहीं किया जाएगा, क्योंकि हमारे देश की न्याय व्यवस्था और कानून व्यवस्था न जाने इंसाफ दिलाने में कितना समय लगाते, मगर हमें पूरा प्रयास करना चाहिए कि उन्हें जल्द से जल्द न्याय मिले और पूरे विश्व में ना सही लेकिन भारत में एक मिसाल कायम हो।